Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem Sita by Toru Dutt. So those who are watching my channel for the first time, please do subscribe my channel. Okay, so this particular poem, as the name suggests, Sita, this poem is about the famous mythological character माता सीता. जो रामायण में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं माता सीता, ये पोएम उनके बारे में है. और तोरू दत्त, she was born on 4th March 1856 and she died on 30th August 1877. She was an Anglo-Indian poet और उनके famous works हैं The Lotus and The Casuarina Tree. So let's start the poem now. So ये particular poem सीता, इसमें जो माता सीता हैं, जो रामायण में जो mythological character हैं, उनके ऊपर ये जो poem है based है. So let's start now. Three happy children in a darkened room. What do they gaze on with wide open eyes? So three happy children, three children who are very happy and they are sitting in a darkened room. तो यहाँ पे darkened room क्यों बोला गया है? Maybe it is night time. That is why it is dark. What do they gaze on with wide open eyes? Gaze means बड़ी बड़ी आंखों से देखना. So what they are trying to imagine and what they are trying to imagine with wide eyes open. वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वो कुछ सुन रहे हैं और इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये तीनों बच्चे कौन हैं? ये तीनों बच्चे जो बैठे हैं उस रूम में, वो तोरू दत्त और उनके सिबलिंग्स हैं, उनके भाई बहन हैं. So they are listening a story from their mother. वो उनकी माँ एक स्टोरी सुना रही है और ये तीनों बच्चे वहाँ बैठ के वो स्टोरी सुन रहे हैं. A dense forest where no sunbeam prays. So there is a dense forest. The mother is telling a story to them. और वो जो स्टोरी सुना रही है उसमें एक वो फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट बहुत ही डेंस है, बहुत ही घना जंगल है, और जो सनरेज है वो सूरज की रोशनी ज़मीन तक बड़ी मुश्किल से ही पहुंच पाती है. वो जंगल इतना घना है. एंड इट सेंटर अ क्लियर्ड स्पॉट. और उस घने जंगल के बीच में थोड़ा सा एक खाली जगह कहीं पे है. There blooms gigantic flowers on creepers that embrace. और उस जगह पे जहाँ वो जंगल है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है और वहाँ पे बहुत gigantic means बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स हैं वहाँ पे. और वो बड़ी बड़ी फ्लावर्स वो जो क्रीपर्स की तरह उनको लपेटे हुए हैं, जैसे वो क्रीपर्स और फ्लावर्स दोनों को हग करके एक दूसरे के साथ उस जंगल में रह रहे हैं, ऐसे वो लटके हुए हैं एक साथ. टॉल ट्रीज, देयर इज़ अ क्वाइट लूसिड लेक. वहाँ पे बड़ी लंबी लंबी ट्रीज़ हैं, वेरी टॉल ट्रीज आर देयर, एंड देयर इज़ अ क्वाइट लूसिड लेक. और उसके पास एक छोटा सा लेक भी है. उस जो फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट के वो जो डिस्क्रिप्शन बता रही हैं उसमें एक लेक भी है छोटा सा. While the wild swans glide there rearing from the break. So उस लेक में swans भी हैं जो उस लेक के पानी में वो तैर रही हैं और वो enjoy वहाँ पे कर रही हैं. तो the description is very beautiful and the forest is very beautiful and all the animals are present there and they are enjoying there the scenic beauty of the forest. The peacock springs there, herds of wild deer race. So उस जंगल के अंदर पीकॉक्स भी हैं, वो पीकॉक भी वहाँ पे वो घूम रही हैं. एंड हर्ड्स ऑफ वाइल्ड डियर रेस. और जो उस जंगल में डियर्स भी हैं जो एक दूसरे के साथ वो रेस कर रही हैं. एक्चुअली दे आर playing, they are having a good time there. The animals, they are playing there and they are enjoying their time there. Their patches gleam with yellow wearing grain. So their patches, वहाँ पे patches भी हैं. किस चीज़ के patches हैं? Yellow wearing green grains. Grains means शायद yellow means maybe हो सकता है वहाँ पे जो राइस भी हो सकता है, wheat भी हो सकता है. जो yellow grains होते हैं वो वहाँ पे वो छोटे से खेत में वहाँ पे grains भी हैं और वो बहुत shine कर रहे हैं, वो चमक रहे हैं वो grains. So all these things that is making the place a very beautiful one. ये सारी चीज़ें add on जब हो रही हैं तो वो फॉरेस्ट की ब्यूटी को वो बहुत एनहांस कर रही हैं. There blue smoke from strange altars arise light. So altar, what is an altar? Altar is a place of worship जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं. So there is also an altar there where there pure blue smoke is coming out from a clear patch. तो वहाँ से एक जब हम पूजा करते हैं तो हवन जैसे करते हैं तो जैसे धुआं निकलता है तो वहाँ से हल्की हल्की वो स्मोक वहाँ से निकल रहा है. There dwells in peace the poet anchorite. So there dwells in peace
तो वहाँ पे कोई शांति से अपना बैठ के वो ध्यान कर रहा है। द पोएट एंकोराइट, एंकोराइट मीन्स जैसे साधु संत जिसको बोलते हैं उनको बोला जाता है पोएट एंकोराइट। सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द सेज वाल्मीकि, यहाँ ऋषि वाल्मीकि के बारे में बात कर रहे हैं। बट हु इज़ दिस फेयर लेडी नॉट इन वेन, एंड देयर, वहाँ वो ऋषि वहाँ पे वो अपना ध्यान कर रहे हैं। बट वेट, हु इज़ दैट फेयर लेडी, वहाँ पे वो फेयर लेडी कौन है जो इतनी खूबसूरत सी लेडी है? हु इज़ दैट लेडी? शी इज़ क्राइंग बट नॉट इन वेन, शी इज़ क्राइंग फॉर सम रीज़न। दैट लेडी, शी इज़ क्राइंग देयर, शी इज़ अ ब्यूटिफुल लेडी बट शी इज़ क्राइंग। और उनकी जो आंसू हैं, द रीज़न इज़ नॉट इनवैलिड, वो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न की वजह से उस जंगल में वो बैठ के वो रो रही हैं। शी वीप्स लॉल एट every sea is the shed, tears from 3 pairs of young eyes fall remain। सो वो जब वो तो ये लेडी के जो बारे में बात कर रहे हैं, द लेडी हियर इज माता सीता। यहाँ पे द मैथोलॉजिकल कैरेक्टर रामायण की जो माता सीता हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि सीता माता वहाँ पे उस जंगल के बीचों बीच बैठ के वो रो रही हैं, और जितने बार वो रो रही हैं उनके आँखों से जितने भी आंसू गिर रहे हैं, सो टीयर फ्रॉम 3 pair of young eyes fall remain। सो उनके आंखों से जितनी बार आंसू गिर रहे हैं, 3 पेयर्स मतलब ये तीनों बच्चे जो सुन रहे हैं कहानी, उनके आंखों से भी आंसू गिर रहे हैं। 3 पेयर्स मीन 3 चिल्ड्रन के दो आइज़ हैं, तो उनके आंखों से भी वो आंसू गिर रहे हैं उतनी बार जितना वो माता सीता की आंखों से वो आंसू गिर रहे हैं। And bowed in sorrow are the 3 young heads, and bowed in sorrow means these children are the 3 children who are listening to the story, they are very sad। और वो स्टोरी सुन के वो माता सीता की जो स्टोरी है, वो स्टोरी सुन के उनको इतना दर्द हो रहा है कि वो रो रही हैं, उनकी आंखों से भी वो आंसू निकल रहे हैं। It is an old story and the lay which has evoked sad Sita from the past। So it is an old story from the Ramayana। जो ये बच्चे कहानी सुन रहे हैं वो रामायण की एक कथा से वो कहानी वो सुन रही हैं। एंड हर स्टोरी इज़ बिंग फ्रॉम द पास्ट। और ये जो कथा है, रामायण की जो कथा है, ये बहुत पुरानी है। और ये कथा सुन के वो तीनों बच्चे इतने व्याकुल हो गए, इतने ये हो गए हैं कि वो रो रहे हैं। From the is by a mother sung, this hushed at last and melts the picture from the sight away। So the song is the song is sung by the mother। जो ये mother हैं, ये अपने बच्चों को गा के ये स्टोरी उनको सुना रही हैं। Yet shall they dream until the day, but the children तो उनकी मदर सोचती है कि ये जब ये बच्चे अभी सुन के ये कहानी इतना रो रहे हैं, तो रात भर ये इसी बारे में सोचेंगे कि माता सीता ने अपनी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स उन्होंने झेले हैं, और ये बच्चे रात भर यही सोचते रहेंगे और रोते रहेंगे। क्योंकि एक कहानी सुनने के बाद वो हमारे माइंड में वो स्टोरी इतनी आसानी से हम भूलते नहीं हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं और रोते रहते हैं। When shall those children by their mother's side gather? Ah me, earliest at eventide। So when the story was over, जब ये स्टोरी ख़त्म हुआ, वो मदर ने आके उन तीनों बच्चों को हग कर लिया, बहुत टाइटली हग किया, और उन्होंने उस स्टोरी को जल्दी ख़त्म कर दिया ताकि वो बच्चे और दुखी ना हों और सैड ना हों। और उन्होंने अपना प्यार दिखाया उन बच्चों को कि डोंट वरी, आई एम विथ यू, आई लव यू, और दिस इज़ जस्ट अ स्टोरी। अब इसके बारे में इतना मत सोचो, और अभी बहुत रात हो चुकी है, एंड यू शुड स्लीप नाउ। एंड द 3 चिल्ड्रन, जो ये तीनों बच्चे जो ये कहानी सुन रहे हैं, एज आई टोल्ड यू, ये तीनों बच्चे तोरू दत्त और उनके सिबलिंग्स हैं, जो उनकी मदर उनको ये कहानी सुना रही थी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोम। और इस पोइम में जो मेन जो ये थीम है, जो स्टोरी बता रहे हैं, जो ये माता सीता के बारे में ये स्टोरी बता रहे हैं कि उनके लाइफ में कितना ज़्यादा स्ट्रगल था, और उन्होंने कैसे करके अपना जीवन उस जंगल में, वो शी वॉज अ प्रिंसेस, वो एक प्रिंसेस थी, पर उन्होंने कैसे उसके बाद उनके लाइफ में इतनी सारी स्ट्रगल्स आई, और वो सारे स्ट्रगल्स के साथ उन्होंने अपने लाइफ को कितनी पॉजिटिवली लिया और उनकी लाइफ को जिया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक यू।